نے کہا کہ نہ صرف ہم کچرا ریموو کر کے بلکہ زمین جہاں تک ہمیں ملتی نہیں ہے تو ہم کھدائی کرتے رہیں اس میں. وہاں سے بھی اس کو پیچھے کلیئر کر دیں گے. بارشوں سے پہلے ہم بارشوں کے لیے تیار ہوں گے. افسران جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کے خلاف اس طرح کارروائی نہیں کرتے. بہانے نہیں, اس کو ماسک پہناؤ اور اس کو تھانے لے کے جاؤ. پروگرام احوال کے ساتھ میں ہوں تجمل جنجوعہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم سرگودا کی تحصیل بھیرا میں موجود ہیں, جہاں پر آج ہم عوامی مسائل کے حوالے سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ تحصیل انتظامیہ اس حوالے سے کیا اقدامات کرتی ہے. تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر بھیرا محمد مرتضیٰ صاحب. سر, سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو سو مچ. سر, بتائیے گا آج کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. آج اینٹی انکروچمنٹ کے حوالے سے آپ نے بتایا. دیکھیے, مینلی تو اچھا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ صحافی برادری ہمیں آ کے گائیڈ کرتی ہے کہ کیا عوامی مسائل ہیں جو مزید جن کو ہماری ایفرٹ درکار ہے. تو آئی ول اپریشیٹ کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور آپ بھی نشاندہی کریں جو آپ کو ایشوز نظر آتے ہیں, اور ہم انکروچمنٹ کے حوالے سے یا کوئی بھی پبلک کمپلینٹ ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کریں اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں, اس کو ریزالو کریں گے. سر, تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا ان شارٹ کہ یہاں پہ کچھ یہ بھی باتیں ہمیں سننے میں آئی ہیں, سامنے آئی ہیں کہ تحصیل انتظامیہ کی جانب سے جب کوئی آپریشن کیا جاتا ہے یا کارروائی کی جانی ہوتی ہے تو پہلے ہی یا تو ان کو آگاہ کر دیا جاتا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو کارروائی کی جاتی ہے اس کے فوری بعد وہ تجاوزات ہیں اگر تو فوری دوبارہ قائم ہو جاتے ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کچھ آپریشن ہم لوگوں کو بتا کر ہی کرتے ہیں. مثال کے طور پر مساجد میں پہلے اعلان کروا دیں گے کہ ہم انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں, تاکہ لوگ, ہم نہیں چاہتے کسی کا استحصال ہو, لوگوں کو ایک وارننگ دے دیتے ہیں اور اگر وارننگ کے باوجود کوئی غلط طرف جا رہا ہے تو پھر ہم اس کے خلاف آپریشن کر لیتے ہیں. تو کئی دفعہ تو اس طرح ہوتا ہے. باقی سرپرائز آپریشنز بھی ہوتے ہیں, پر سرپرائز آپریشن ہم ہمیشہ مین آپریشن کے بعد کرتے ہیں, تاکہ لوگوں کو, جب ہم نے جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ مین آپریشن کے بعد کئی دفعہ لوگوں کو یہ عادت ہے کہ جی آپریشن تو اب ہو گیا ہے, اب شاید انتظامیہ دوبارہ نہیں آئے گی, تو ہم اس کے پھر 1 دن 2 دن کے بعد سرپرائز آپریشن دوبارہ کر دیتے ہیں. ابھی آپ فیلڈ میں جا کے دیکھ لیں گے کہ مین بازار وغیرہ کچھ ہیں جن کا ہم نے آپریشن کیا تھا 10 دن پہلے, ابھی ہم وہ بھی وزٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیسا ہے, اور جو باقی کچھ بازار جن پہ پہلے آپریشن نہیں ہوا ان میں آج آپریشن آپ کے سامنے کر لیتے ہیں. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ریڑھی بان جو ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی اس طرح نہیں کی جاتی جس طرح دکانوں والوں کے خلاف کی جاتی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں وہی بات آپ کو دوبارہ, ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے یہ فروٹ بیچ رہا ہے, اس نے یہاں پہ ریٹ لسٹ نہیں رکھی ہوئی, اس کو میں نے کہا ہے کہ ریٹ لسٹ لے کے آؤ, اس نے ریٹ لسٹ اس کے پاس ہے ہی نہیں, حالانکہ صبح ان سب کو ریٹ لسٹ ڈلیور کی جاتی ہے. اب ہم اس میں کارروائی کرتے ہوئے اس لیے رکتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم ہے, غریب لوگ ہیں, انسان کا پھر دل ہوتا ہے کہ یار ان کو جتنا بندہ ریلیکس کر سکے کرے, پر لوگ جو ہیں وہ اس میں باز نہیں آتے. اب اس میں ہمارے لیے ایک بڑی ٹف سچویشن ہے. یہاں تو ہم ابھی اس کو جیل بھیج دیں گے تو ظاہری بات ہے لوگ بھی یہ کہیں گے کہ جی ایک غریب بندہ تھا, آپ نے کیوں اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی. ٹھیک ہے, اگر غلطی ہو گئی ہے, اس کے پاس نہیں ہے ریٹ لسٹ, پر حق تو یہ ہے کہ ان کو سزا دی جائے, سخت سزا دی جائے, تاکہ ان کے آئندہ ان کو یاد رہے کہ ان کو اس طرح کی غلطی نہیں کریں. سر, یہ بھی تو ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے, ایک یہ چیز ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے, گزرنے والوں کے لیے مشکلات کا سبب بن رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس حوالے سے تو ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. ہماری پہلی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو کاؤنسل کریں, ان کو سمجھائیں. اگر سمجھانے کے بعد نہیں اثر ہوتا تو پھر ظاہری بات ہے ان کو سزائیں دینا از پارٹ آف دا جاب, وہ تو ہم کر ہی گئے ہیں, پر پہلے ہم ہمیشہ وارننگ دیتے ہیں اور وارننگ سے کوشش کرتے ہیں کہ لوگ سمجھ جائیں. کافی لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں. اب ان کو بھی ہم یہ وارننگ دے کے گئے ہیں, ہاں جی آئندہ ہوئے گی ریٹ لسٹ, نہیں ہوئے گی, پکی گل ہے, گواہ سارے ہیں تو سامنے تمہیں میں وارننگ دے دیتی ہے, اگلی باری نہیں ہوئی تو کی سزا دئیے تمہیں. ہم وارننگ سے کوشش کرتے ہیں کہ وارننگ سے سمجھ جائیں, تاکہ انتظامیہ اور شہری جو ہیں وہ مل کے ساتھ چلیں. ساری ٹریفک تم لوگوں کی وجہ سے بلاک ہوتی ہے, ساری ٹریفک تم لوگوں کی وجہ سے بلاک ہوتی ہے, اور تم لوگ ٹریفک کا بالکل پرواہ نہیں ہے. کوئی ایمبولینس پھنسے, کوئی بندہ پھنسے, کوئی تم لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے, تم لوگوں نے سڑک ساری بلاک کر دیتے ہو. ابھی کھڑے ہی ہیں, گاڑی نا وہ بھی گاڑی خراب ہے, یہ بھی گاڑی خراب ہے, بہانے نہیں, اس کو ماسک پہناؤ اور اس کو تھانے لے کے جاؤ. یہ سر پہلے بھی آئے ہیں, آپ کو انہوں نے پہلے نہیں آپ کو منع کیا یہاں سے روکنے؟ سر ابھی آیا تھا تو میں نے گاڑی ہے نا روڑا نکال ابھی جا رہا تھا. آپ بتائیں کتنی دیر ہوگی آپ کو یہاں پہ کھڑے ہوئے؟ تقریباً ہو گیا نا کوئی 8-10 دن ہوگا.
8-10 दिन हो गए, आज कितनी देर हो गई है? सर अभी आई है तो अभी- ये सर नहीं पहले आया, आपको पहले नहीं मना किया इन्होंने? अभी खड़ी की है अभी मदर साहब आपने ये इधर खड़े होते हैं, मैंने 10 दफ़ा मना किया है, यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी, यहाँ खड़ा इधर मुंह करके ये बेच रहे होते हैं। अब हमको देख के ना ये अभी फ्रेश टायर जो है ना ये लगी हुई हैं, देख के ना अभी इन्होंने इधर की है। अच्छा सर ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि अक्सर शहरों में इस तरह के मसाइल होते हैं, गाड़ियाँ खड़ी करके लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, एम्बुलेंसेस गुजरनी होती हैं, उससे मसाइल होते हैं, लोगों की जान जा सकती है, तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? इनको हम रेगुलरली यहाँ पे हटाते रहते हैं। हमने यहाँ भेरा में ये किया है कि एक इन्फोर्समेंट फोर्स बना दी है। यहाँ पे आपको इन्फोर्समेंट फोर्स के वर्दी के अंदर बंदे नज़र भी आ रहे हैं। इनका काम ये है कि ये पूरा दिन जो रश आवर्स हैं ख़ास तौर पे उसमें इस रोड के ऊपर पहरा देते हैं और यहाँ से लोगों को हटने का कहते रहते हैं। हफ्ते के हफ्ते हम इनके खिलाफ एक स्ट्रिंजेंट कार्रवाई भी करते हैं। तो जिन लोगों ने कोई पुख्ता तजावज़ात बना दिए हुए हैं उनको हम रिमूव करते हैं। अभी हम आपको वो भी दिखा देंगे और वो हम सारे के सारे रिमूव कर देते हैं। सर जैसे ये गाड़ी खड़ी हुई है तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करना है? इसको अभी ये थाने जाएगा, इसके खिलाफ मुकदमा होगा, इसको जुर्माना भी करेंगे और इसको हम 1 से 2 रात के लिए रेकमेंड करेंगे कि इसके खिलाफ FIR होगी म्यूनसिपल लॉज की वायलेशन के। ये जो शॉप का आप इशू बता रहे थे, आप पहले भी वार्निंग दे दी है, उसके बावजूद ये काम जो है ये जारी है। इस हवाले से क्या कहेंगे कि अक्सर दुकानदार जो हैं वो यही करते हैं, दुकानों से आगे जो हुकूमत की खिलाफ वर्जी करते हुए खड़े बना देते हैं या इस तरह जो आगे बढ़ा देते हैं अपनी दुकानों को, जिससे ट्रैफिक की रवानगी में यकीनन मुश्किलात पेश आती हैं। तो क्या कहेंगे आप इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्या खिलाफ वर्जी की है? इसमें मसला ये होता है कि हमारे पास क्योंकि अफराधी क़ुव्वत की कमी है, तो अगर हफ्ता 2 हफ्ता तक यहाँ पे चेकिंग नहीं होती तो लोगों के खड़े जो हैं वो आगे निकाल लेते हैं, बना देते हैं। हमारा उसमें प्रोसेस ये है हम किसी का नुकसान भी ना करें, पहले हम वार्निंग देते हैं रिटर्न। अगर उस वार्निंग के बावजूद कोई अपना काम नहीं रोकता तो फिर हम उनके आगे जगह सील कर देते हैं जब तक कि वो उस इंफोर्समेंट को सही नहीं करते। और उसमें जो सरकारी जगह का नुकसान हुआ होता है, यहाँ पे आप देखो कि टफ टाइल हुई थी सरकारी, इन्होंने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी है सीढ़ियों की, तो जितना उसका नुकसान होता है वो भी वो पूरा करें और अपनी नक्शे को भी वो अप्रूव नक्शे के मुताबिक करें। थोड़ी सी तफसीलात बता दीजिएगा, कितना अरसा पहले तक यहाँ से सफाई नहीं हुई थी? ये बिल्कुल हमारे शहर का एक सेंटर वाला हिस्सा है और मेन बाज़ार बिल्कुल आप देख रहे हैं, मेन बाज़ार की रोड साथ है। यहाँ पे 25 साल से कचरा फेंका जा रहा था। हमने कहा कि ना सिर्फ हम कचरा रिमूव करके बल्कि ज़मीन जहाँ तक हमें मिलती नहीं है तो हम खुदाई करते रहें उसमें। तो ये अगर आप अभी फुटेज लो आप नज़र आएगा कि ये हमें कोई 8 फुट तकरीबन कुछ जगहों पे खोदना पड़ा कचरा निकालने के लिए। अब प्लान ये है कि यहाँ पे हम अच्छी मिट्टी डाल के तो इधर एक पार्क बनाएंगे, एक सिटिंग एरिया बनाएंगे और एक फूड स्ट्रीट की इस जगह को शक्ल दे देंगे। सीवरेज के हवाले से ख़ास से यहाँ पर शिकायत हमें मौसूल हुई थी। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि सीवरेज के हवाले से कोई जो है इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम नहीं किए जा रहे। मेरे साथ इस वक्त भी एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी भाई बताइएगा, आपके शहर में जो सीवरेज के इंतज़ाम हैं वो कैसे हैं, इंतज़ामिया क्या कर रही है? नाला काफ़ी पुराना है और भेरे की अराउंड 90% इस निकासी जो है वो इसी नाले से जाती है और इस नाले की बहुत खस्ता हालत है। ये नाला चूँकि अब नीचे चला गया है और आबादी जो है वो थोड़ी ऊपर आ गई है, मतलब मकान जो है साइडों पे वो ऊपर आ गए हैं और पानी इसका बाहर निकल आता है और ज़्यादा अमूमन जब बारिशें होती हैं तो पानी ये दोनों साइडों पे बाहर आ जाता है और लोगों के लिए काफ़ी परेशानी होती है। तो तहसील इंतज़ामिया यहाँ पे सफाई वगैरह नहीं करवाती? तहसील इंतज़ामिया बारिश के बाद आते हैं नाले की सफाई वगैरह ये वो, लेकिन मसला ये है कि इस नाले को अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। इसको असिस्टेंट कमिश्नर साहब क्या कहेंगे, आपने अवामी शिकायत भी आपके सामने है तो क्या कहेंगे, क्या काम कर रही है म्यूनसिपल कमेटी? आप इसमें जो तारीख़ी तौर पे बात ये सही कर रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा जब बारिश हो जाती है उसके बाद नाले की सफाई करने के लिए आते हैं। हालांकि ज़रूरत इस बात की है कि आप बारिश से पहले वो सफाई करें। इस बार जुलाई की बारिशों से पहले, अभी जून चल रहा है, तो हमने यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम शुरू कर दिया है। उसकी सबसे पहली एग्जांपल आपको ये जो इन्होंने ख़ुद बताया कि 90% तकरीबन सीवरेज इस नाली से जाता है। तो इसमें अभी आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल जो उसकी कल्वर्ट है उधर हमने क्लियर कर दिया है, उसका जितना भी इधर कचरा बह के पूरे शहर का आता था उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया। और हमको म्यूनसिपल कमेटी को इस पर कहा, ये 1 जून से हमने कार्रवाई शुरू की है कि उल्टा शुरू करें, जहाँ से ड्रेन एंड हो रहा है वहाँ से बैकवर्ड चल के पूरे शहर के जितने नाले हैं उनको एक एक करके साफ़ करें। यहाँ से इन्होंने इसको क्लियर कर दिया, आपको नज़र आ रहा है इस वक्त वाटर लेवल फ्लो कर रहा है यहाँ पे आपको कचरे का कोई अंबार नहीं नज़र आ रहा होगा। वहाँ से भी इसको पीछे क्लियर कर देंगे। बारिशों से पहले हम बारिशों के लिए तैयार होंगे इंशाल्लाह। सर क्या डेडलाइन दी गई है आपकी जानिब से मुलाजमीन को, कब तक उम्मीद रख सकते हैं कि सीवरेज का निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाएगा? 1 जुलाई तक हमारा टारगेट है कि हमने भेरा की जितनी भी नाली हैं उन सब को
बारिश के लिए प्रिपेयर करते हैं। भेरा शहर जो है तारीख़ी एतबार से इसकी काफ़ी अहमियत है और यहाँ पर तारीख़ी मसाजिद और कदीमी जो गेट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी हवाले से 7 जो तारीख़ी गेट हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। इस हवाले से हम इस वक्त मौजूद हैं। जो चिन्योटी दरवाज़ा है ये गेट के हवाले से हमें बताइएगा कि यहाँ पर आपके दौर में जो है क्या इसके हवाले से किया गया, क्या इक़दाम किए गए और मज़ीद आप क्या इरादा रखते हैं? जितना भी तारीखी विरसा है भेरा का उस सारे की प्रोटेक्शन के लिए हम एक तो उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इधर भी आप देख रहे हैं हमने आई लव भेरा का एक ऊपर बोर्ड भी लगाया है और इसकी लाइटिंग की है। अगले स्टेप में हम इसके ऊपर जितनी पैनाफ्लेक्स वगैरह लगे हैं काफ़ी ज़्यादा रिमूव कर दिए हैं। लोग नए भी लगा देते हैं, उनको भी हम मरहलावार जो है वो हर हफ्ते के हफ्ते रिमूव करते रहते हैं। तीसरा हम उसमें कर रहे हैं कि यहाँ पे अक्सर वापडा के और दीगर महकमों के जो खंबे हैं वो लग गए होते हैं बिल्कुल दरवाजे के यहाँ तारीखी वर्षे के बीच में, उनको हम रिमूव करवा रहे हैं। तो अभी इसका भी प्रोसेस चल रहा है कि यहाँ से वापडा का जो एक ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, टेलीफोन की लाइव वायर्स रिमूव करेंगे ताकि इसको मज़ीद आवेज़ा और उजागर किया जा सके। ये बताइएगा कि ये भेरा जो है तारीख़ी शहर है और ये गेट के हवाले से इस हवाले से दीगर भी यहाँ पर तारीख़ी जो मकामात हैं वो मौजूद हैं, तो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए जो है वो आपकी तरफ से क्या इक़दाम किया जा रहा है? हमने एक भेरा हिस्टोरिकल ट्रेल बनाया है जो भेरा की चुंगी से शुरू होकर तो दरियाए झेलम तक जाता है और उसके लिए हमने टूरिस्ट के लिए नक्शे बनाए हैं ख़ास। अभी आपको हम दिखा भी देंगे कि जो शेषा सूरी मस्जिद है वहाँ से इसको शुरू किया है, उसकी मुकम्मल रेस्टोरेशन की गई है। वहाँ पर टूरिस्ट हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, एक म्यूज़ियम बनाया गया है। उसी तरह यहाँ का एक रेलवे स्टेशन पुराना है, उधर हम एक म्यूज़ियम बना रहे हैं। तो यूँ करके हम एक पूरा प्लान से चल के तो इसको एक हेरिटेज सिटी जो है वो बनाना चाह रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर से भी हमने ताउन मांगा है और दीगर जो महकमे आसार कदीमा वगैरह वो भी इसके अंदर हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने भेरा के अवाम को दरपेश मसाइल के हवाले से बातचीत की। मज़ीद किसी प्रोग्राम के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।